forget to like, share and subscribe. Hello students, today we are going to discuss logarithmic function. This is simple function like identity function, greatest integer function, signum function, modulus function. Definition of log. Log x base a. We speak log x base a is equal to y. If and only if a raised to the power y equal to x. Just see the relation between log and exponent. A raised to the power y, interchange x and y, position of x and y, where a is greater than 0 and a not equal to 1. अब फर्स्ट जब भी हम कोई फंक्शन पढ़ते हैं मतलब उसका हमें डोमेन और रेंज मालूम होनी चाहिए. सो नाउ राइट डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. डोमेन मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज रियल. अब यहाँ पे x की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? a टू द पावर y. फॉर एवरी a ग्रेटर देन 0 a रेज टू पावर y is always positive quantity, means greater than 0. So domain of f is 0 to infinity. And range all possible value of y, x equal to a to the power y. For every y belong to real number, x is real because any number raised to the power real number is real number. So x is always real. So range f is equal to minus infinity to infinity, or we can write set of real number. अब y a not equal to 1, we discuss few things कि y a not equal to 1. If we write log 1 x equal to y, इफ log x बेस 1 इक्वल टू y, हमने बेस क्या ले लिया? 1 ले लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप प्रॉपर्टी ऑफ log, हम इंटरचेंज करेंगे आपस में x और y की पोजीशन को. तो क्या मिलेगा हमें? 1 रेज टू द पावर y इक्वल टू x. एनी नंबर रेज टू द पावर 1 इज ऑलवेज 1. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमको 1 मिलेगा. अब मान लो यहाँ पे मैं x की वैल्यू चेंज कर दूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2. 1 नॉट इक्वल टू 2, यानी ये फेल हो जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया देन क्या होगा? 1 रेज टू द पावर y इक्वल टू 2. एनी नंबर रेज टू द पावर y 1 मीन्स 1 नॉट इक्वल टू 2, यानी हम बेस कभी भी 1 नहीं ले सकते लॉग का. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज लॉग. अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81 base 3. We don't know value of this, so let value of log 81 base 3 equal to x. Next step, apply property of log, means definition of log. Interchanging position of 81 and x. So 3 raised to the power x equal to 81. 81 we can write 3 raised to the power 4. On comparing x equal to 4, find the value of log 1000 base 10. Again we don't know value of this, so let log 1000 base 10 is equal to x. Then definition of log, interchange position of these two. बेस में 10 ही रहेगा, तो 10 raised to the power x equal to 1000, and 1000 can be written as 10 raised to the power 3. So on comparing, value of x is 3. अब now why a is greater than 0? Because domain of this function is 0 to infinity. Domain means
x is greater than 0, x is greater than 0. अब when x is greater than 0, this quantity is positive, means this quantity must be positive. अब ये पॉजिटिव कब होगी? एनी नंबर, अगर मान लो y की वैल्यू मैंने इवन ले ली, a की वैल्यू अगर नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तब तो x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. लेकिन अगर y ओड नंबर है और a की वैल्यू नेगेटिव, फॉर एग्जांपल -2 और रेज टू दी पावर 3, देन हमें क्या मिलेगा? -8 विच इज़ लेस देन 0. x इज ग्रेटर देन 0. बाय डेफिनेशन डोमेन ऑफ लॉग इज ग्रेटर देन 0. और यदि हम a की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको? x इज नेगेटिव विच इज़ नॉट पॉसिबल. डेट्स वाई a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1. यानी जब भी हम लॉग लेंगे तो उसका जो बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा. अब व्हाट इज़ लॉग? हम लॉग क्यों पढ़ रहे हैं? अर्लियर हम कैलकुलेशन के लिए लॉग का यूज करते थे, लेकिन अब कैलकुलेटर आ चुके हैं, कंप्यूटर आ चुके हैं, तब लॉग की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अचानक मान लो सारे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी हैं अगर डैमेज हो जाएं तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर हमको डालना पड़ेगा, कोई फार्मूला, वो हम लॉग से ही डाल पाएंगे. यानी लॉग पढ़ना जरूरी है और इसका बहुत ज़्यादा यूज है डिफ्रेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर और फॉर IITG. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. प्रॉपर्टी 1, log 1 base a where a is greater than 0 and a not equal to 1, means for any base greater than 0 not equal to 1 is always 0. Now proof. Let log 1 base a is equal to x and we have to show value of x is 0. Next step, डेफिनेशन ऑफ लॉग, यानी इनको आपस में इंटरचेंज करना है. तो a रेज टू दी पावर x इक्वल टू 1. a अपनी जगह बेस में ही रहेगा, x और 1 आपस में चेंज होगा तो a टू दी पावर x इक्वल टू 1, a टू दी पावर y इक्वल टू x. अब वी ऑल नो डेट a टू दी पावर एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 इज 1. a रेज टू पावर x इक्वल टू 1 implies x इक्वल टू 0. Because any number raised to the power 0 is 1. Property of exponent. और x means log 1 base a is equal to 0. So remember this is very important result. Property number 2. Log a base a is equal to 1. Let log a base a is equal to x. Next step, definition of log a to the power x equal to a. On comparing a to the power x equal to a to the power 1, so x equal to 1 or x means log a base a is equal to 1. Next property, log m into n base a is equal to log m base a plus log n base a. Now proof of this. Let log m base a is equal to x and log n base a is equal to y. Then definition of log a to the power x equal to m and a to the power y is equal to n. Therefore, product of these two equations, to multiply two equations we just multiply the left hand side as well as right hand side. So a to the power x into a to the power y equal to m into n. A to the power x into a to the power y, we can write a to the power x plus y equal to mn. अब now convert exponent into log.
लॉग को अभी तक एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे थे, अब एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेस तो वही रहेगा लॉग का जो एक्सपोनेंट का है, सिर्फ ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो एम एन इधर रहेगा और इधर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। सो लॉग एम एन मीन्स एम इंटू एन इक्वल टू एक्स मीन्स लॉग एम बेस है और वाई मीन्स लॉग एन बेस है। प्रॉपर्टी 4, log m अपॉन n बेस है इज इक्वल टू log m बेस है माइनस log n बेस है। प्रॉपर्टी 4 आल्सो सेम इज प्रॉपर्टी नंबर 3। फर्स्ट टू स्टेप्स आर सेम, log m बेस है इक्वल टू x एंड log n बेस है इक्वल टू y। Then a to the power x equal to m and a to the power y equal to n. अब now next steps, this time divide because आपको m upon n चाहिए, m upon n, so a to the power x upon a to the power y is equal to m upon n. Now use property of exponent, a to the power x minus y equal to m upon n. अब convert exponent into log, तो लॉग में कैसा करेंगे, बेस अपनी जगह रहेगा और m अपॉन n इधर आ जाएगा a की पावर में, तो इधर क्या मिलेगा आपको x माइनस वाई। सो लॉग m अपॉन n बेस a इज इक्वल टू लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, लॉग m रेज टू द पावर n बेस है इज इक्वल टू, ये जो पावर हो आगे आ जाएगी n log m बेस a। अगेन प्रूफ ऑफ दिस, लेट log m बेस a इज इक्वल टू x। नाउ यूज डेफिनेशन ऑफ log a to the power x इक्वल टू m। अब यहाँ पे m रेज टू द पावर n है, यानी दोनों तरफ उनको n पावर लगानी है। a टू द पावर x होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू m रेज टू द पावर n। अब प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट a टू द पावर x होल रेज टू द पावर n मीन्स a टू द पावर nx इज इक्वल टू m रेज टू द पावर n। देयरफॉर अब कन्वर्ट एक्सपोनेंट इनटू लॉग, तो एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस सेम रहेगा, log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू nx। सो log m रेज टू पावर n बेस है इज इक्वल टू n और x मीन्स log m बेस है, log m बेस a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर log के अंदर पावर के log के अंदर अगर m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा। नेक्स्ट log x बेस है इक्वल टू log x बेस b अपॉन log a बेस b। इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स में क्या होता है कि बेस हमको a नहीं चाहिए रहता, बेस में e चाहिए, बेस में 10 चाहिए, तो अपन जो चाहे वो बेस में चेंज कर सकते हैं। आपकी इच्छा होता है यहाँ पे b की जगह 10 ले सकते हैं, b की जगह e ले सकते हैं, एनी नंबर हम ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1। अब नाउ प्रूफ ऑफ दिस, लेट log x बेस है इज इक्वल टू y। नेक्स्ट स्टेप, डेफिनेशन ऑफ log a टू द पावर y इज इक्वल टू x। अब आपको बेस डिफरेंट चाहिए, क्या चाहिए, बेस b चाहिए, जो भी बेस चाहिए वो आपको लेना है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड whose base is b, so log b a raised to power y is equal to log b log x base b।
क्यों आपको b बेस चाहिए तो b ले लिया, अगर आपको यहाँ पे 10 चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे 10। अब नेक्स्ट स्टेप log m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n इक्वल टू n log m, सो वी कैन राइट y log a बेस b इज इक्वल टू log x बेस b, सो y इज इक्वल टू log x बेस b अपॉन log a बेस b, एंड व्हाट इज y, log x बेस है, log x बेस है इज इक्वल टू log x बेस b अपॉन log a बेस b, so this is called base changing formula. Next property, log b बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b। यदि अगर 1 अपॉन भी log दे रखा हो तो अगर उसको ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, a और b आपस में चेंज हो जाएंगे। जस्ट सी प्रूफ ऑफ 7, log b बेस a by base changing theorem we can write log b base x upon log a base x and x greater than 0 and x not equal to 1। जो भी अपन बेस लेंगे हमेशा ध्यान रखना ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन log a बेस x अपॉन log b बेस x और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन, और इसको बेस चेंजिंग से अपन क्या लिख सकते हैं log a बेस b, सो log b बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8, log x और इन बेस a रेज टू द पावर b, अगर न्यूमरेटर के अंदर m की पावर n हो तो n आगे आ जाएगा, सॉरी अगर log के अंदर m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, और यदि बेस के अंदर पावर है तो वो अपॉन में आ जाएगी 1 अपॉन b log x बेस है। दोनों को कंपेयर करो 8th और 5th, अगर log के साथ m रेज टू पावर n है तो n आगे आ जाएगा, और यदि बेस के पावर में a रेज टू पावर b तो ये b कहाँ आएगा 1 अपॉन b log x बेस है। नाउ प्रूफ नंबर 8, log x और a b इज इक्वल टू बेस चेंजिंग थ्योरम से क्या आएगा log x एनी बेस c अपॉन log b सॉरी log a रेज टू पावर b और बेस c, यूज बेस चेंजिंग थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप log x बेस c अपॉन ये जो पावर a टू द पावर b log m रेज टू पावर n log m, तो ये जो b आगे आ जाएगा तो b log a बेस c, और अगेन बाय बेस चेंजिंग थ्योरम log x बेस c और log a बेस c, बेस सेम है दोनों में, तो वापस अपन क्या लिख सकते हैं इसको log x बेस a। नेक्स्ट 9th, a रेज टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू x। यदि log का बेस और एक्सपोनेंट का बेस सेम है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा x, a और log a कैंसिल। नाउ प्रूफ ऑफ 9th, लेट log a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू y। लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे y इक्वल टू x। अब डेफिनेशन ऑफ log क्या हुई, डेफिनेशन से ये जो y है वो कहाँ जाएगा log में कन्वर्ट, एक्सपोनेंट है इसको log में कन्वर्ट करना है, तो log का बेस तो यही रहेगा, और ये जो पावर है वो क्या आ जाएगी y आ जाएगा, और इक्वल टू log x बेस है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ऑन कंपेयरिंग log y इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना आ गया x, और y मीन्स a टू द पावर
log x base a is equal to x. So this is very important results for differentiation or competition exam. And now 10th, x raised to the power log y base a is equal to y raised to the power log x base a. Again, this is very important result. And now proof of this. X raised to the power log y base a is equal to, we can write x raised to the power, अब log y base a we can write by base changing theorem, log y base x upon log a base x. दोनों बेस अपन ने क्या ले लिया, x ले लिया. नेक्स्ट स्टेप, x रेज टू द पावर log y बेस x एंड होल रेज टू द पावर, ये 1 अपॉन है, होल रेज टू द पावर 1 अपॉन log a बेस x. नेक्स्ट स्टेप, x log y बेस x बाय प्रॉपर्टी नंबर 9 किसके इक्वल होगा, y के, और y की पावर में कितना, 1 अपॉन log a बेस x. इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बाय दिस प्रॉपर्टी 1 अपॉन log a बेस b इक्वल टू log b बेस a, यानी आपस में इंटरचेंज होएंगे. तो रेज टू द पावर log x बेस a. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर कॉम्पिटिशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर कॉम्पिटिशन. अगले वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे. जितने भी फार्मूलेज है, देयर आर 10 फार्मूलेज, तो हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू IIT JEE और सम नॉर्मल क्वेश्चंस. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.